نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی صدارت میں بین الوزارتی اجلاس، پاکستان آذربائیجان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے لیے پرعزم۔ آذربائیجان کے ساتھ سرمایہ کاری منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ، معاشی ترقی کے لیے کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد تیز کیا جائے، قابل عمل منصوبوں میں سرمایہ کاری یقینی بنائی جائے۔ محمد اسحاق ڈار۔ پنجاب کے کاشتکاروں کے لیے گرین ٹریکٹر، کسان کارڈ، سپر سیڈر سمیت بے شمار منصوبے۔ گندم اگانے والے کاشتکاروں کے لیے 1000 مفت ٹریکٹر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے بٹن دبا کر گندم اگاؤ انعامی اسکیم کے لیے قرآن اندازی کی۔ گندم اگاؤ مہم میں سب سے پہلا ٹریکٹر بہاول نگر کی خاتون کاشتکار کوثر پروین کا نکلا۔ 3 ماہ کے اندر تمام کاشتکاروں کو ٹریکٹر کی فراہمی شروع ہو جائے گی۔ مریم نواز شریف۔ رانا ثناءاللہ سے آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز کی ملاقات، پاکستان اور آسٹریلیا کے تعلقات پر تبادلہ خیال، باہمی تعاون پر زور۔ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف حوصلے اور قربانیوں کی مثال نہیں ملتی، پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، رانا ثناءاللہ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ ماجدہ قضاء الہی سے وفات پا گئی۔ صدر اور وزیر اعظم کا جنرل سید عاصم منیر کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس، سوگوار خاندان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مرحومہ کے لیے بلندی درجات کی دعا۔ چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، گورنرز، وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء کا چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ محترمہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ یوسف رضا گیلانی، سردار ایاز صادق، کامران خان تیسوری، مریم نواز شریف، محسن نقوی، سردار محمد یوسف، انجینئر امیر مقام، علیم خان اور دیگر کی مرحومہ کی مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ ماں جیسی عظیم ہستی کا اس دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں، اہل خانہ سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواستیں سماعت کے لیے آج مقرر۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے۔ احتساب عدالت نے جرم ثابت ہونے پر بانی پی ٹی آئی کو 14 سال قید جبکہ بشرا بی بی کو 7 سال قید اور جرمانوں کی سزا کا فیصلہ سنایا تھا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں علی امین گنڈا پور کے خلاف آڈیو لیک کیس کی سماعت، مسلسل غیر حاضری پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار، کیس کی سماعت 18 اپریل کو دوبارہ ہوگی۔ ایس آئی ایف سی کے تعاون سے پاکستانی صنعتی برآمدات کا عالمی سطح پر فروغ، پاک الیکٹران کا امریکہ کو مصنوعات کی برآمدات کا آغاز۔ ٹرانسفارمرز کی پہلی کھیپ رواں ماہ کی 13 تاریخ کو پاکستان سے امریکہ روانہ ہوئی۔ کمپنی کی عالمی سطح پر ترقی کے لیے ہٹاچی، فوجستو اور جنرل الیکٹرک سمیت کئی معروف بین الاقوامی کمپنیز کے ساتھ شراکت داری۔ ایس آئی ایف سی کا مشن سرمایہ کاری اور صنعتی خوشحالی کے ذریعے ملکی معیشت کا استحکام۔ پاکستان کے لیے بڑا اعزاز، لندن کے تاریخی چرچ ویسٹ منسٹر ای وے پر پاکستان کا قومی پرچم لہرا دیا گیا۔ پاکستان کے لیے یہ خصوصی اعزاز کامن ویلتھ کا ممبر ملک ہونے کی وجہ سے قومی دن کے موقع پر دیا گیا۔ یوم پاکستان کے موقع پر تاریخی چرچ میں خصوصی دعائیہ تقریب کا بھی انعقاد۔ دعائیہ تقریب میں پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کی بطور مہمان خصوصی شرکت، ہائی کمیشن کے افسران، ان کے اہل خانہ اور دیگر افراد کی بھی شرکت۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا۔
वॉशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने में यौम पाकिस्तान की तकरीब का इनेकाद, अमरीकी हुकाम की शिरकत, पायदार शराकतदारी की अज़्म का यादा, इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के मुसलसल ताउन की तारीफ, इलाकाई चैलेंजेस, इक्तसादी दबाव और सिक्योरिटी खतरात के बावजूद पाकिस्तान मजबूत हुआ। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का तकरीब से खिताब। काबिज सिहूनी फोर्सेस की गजा पर जारियत जारी, ताज़ा हमलों में 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, शहदा में ख़वातीन और बच्चों की कसीर तादाद भी शामिल। शहीद होने वाले मजलूम फ़लस्तीनियों की तादाद 50,000 से मुतजावज़, 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी। गजा में इंसानी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया, खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म, रज़ाकाराना वापसी में 7 दिन बाकी। इस दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। मुकर्ररा तारीख के बाद मुतालिका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तालिबान के ज़ेर असर अफगानिस्तान मनशियात का गढ़ और दहशत गर्दी का मुआविन। तालिबान के ज़ेर कब्जा अफगानिस्तान में हेरोइन और अफ्यून की काश्त का बड़ा मरकज। मनशियात की सनत से जुड़े अफराद हथियार, इंसानों और मनशियात स्मगलिंग में मुलव्विस। मनशियात की आमदनी से तालिबान असलहे की गैर कानूनी तिजारत को फ़रोग दे रहे हैं। अफ्यून, हेरोइन और मेद की बड़ी काश्त से खित्ते को संगीन खतरात लाहिक। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए मनशियात और जराइम की रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम गुलामों की तजारत के हवाले से आलमी दिन। अफ्रीकी ममालिक से गुलामों की तजारत का सिलसिला 400 साल पर मुहित है। गुलामी के इस बदतरीन फेल को 19वीं सदी में भी कानूनी हैसियत हासिल रही। नौ आबादियाती इस्तेहसाल नस्ल परस्ती की सूरत में आज भी मौजूद है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज 5वां और आखिरी मैच कल वेलिंगटन में खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 3-1 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। कौमी T20 स्क्वाड के बेसन रिजर्व ग्राउंड में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन, खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। दोनों टीमों के दरमियान वनडे सीरीज के लिए मेजबान स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया गया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में मास्टर्स 1000 मियामी ओपन टेनिस। अमरीकी खिलाड़ियों के लिए बुरा दिन। रॉयली ओपल्का, कोको गॉफ और फ्रांसिस तियाफू इवेंट से बाहर हो गए। फ्रांस के आर्थर फिल्स ने फ्रांसिस तियाफू, जमहूरिया चेक के टॉमस महाश ने रॉयली ओपल्का को हरा दिया। टेलर ने कनाडा के डेनिस को हराकर वाहिद मकामी उम्मीद बरकरार रखी। जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़वेरेव, जमहूरिया चेक के जैकब मेंसिक, ऑस्ट्रेलिया के एडम वॉल्टन भी लास्ट 16 में शामिल। अमेरिका में WTA मास्टर्स 1000 मियामी ओपन खवातीन सिंगल्स। अमेरिका की कोको गॉफ का सफर तमाम। पोलैंड की मैग्डालेनेंथ बेलारूस के अरीना सेबलेंका क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मैग्डालेनेंथ ने 3rd सीड कोको गॉफ को स्ट्रेट सेट्स में हराया। आलमी नंबर 1 अरीना सेबलेंका ने अमेरिका की डैनली कोलिंस को शिकस्त दी। विंग फॉयल वर्ल्ड टूर मराकश सीजन का इफ्तिताही मुकाबला। मेंस इवेंट में 3 मरतबा के विंग फॉयल रेसिंग वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस के मैथिस घियो ने फतेह समेट ली। खवातीन में इटली की मदालिना स्पोनो ने तमाम रेसेस में पहली पोजीशन अपने नाम की। इवेंट में कई नए टैलेंट्स उभर कर सामने आए और फाइनल में जगह पक्की कर ली। इंसान 3 किस्म के होते हैं। पहला बादशाह, दूसरा वो जो बादशाह से डरता है, और तीसरा वो जिससे बादशाह डरता है। मुझे उस सुरूज नामी शख्स के और पाकिस्तान में तुर्की के ड्रामों की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा। सल्तनत उस्मानिया के नामवर बहरी कमांडर खैरुद्दीन बारबरोसा की जिंदगी और फतूहात पर मबनी ड्रामा सीरीज बारबरोसा PTV होम और डिजिटल पर रमजानुल मुबारक के महीने में
معروف تاریخی ترکی ڈرامہ اردو ڈبنگ کے ساتھ نشر کیا جا رہا ہے۔ خیر الدین باربروسا کی بہادری، بحری جنگوں، فتوحات اور یورپی قوتوں کے خلاف ان کی مزاحمت کو انتہائی مسحور کن انداز میں پیش کیا گیا۔ ناظرین کی جانب سے غیر معمولی پذیرائی، سوشل میڈیا پر ڈرامے کی دھوم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور دن 12 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عثمان چوہدری اور میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ کھیل کا حوالہ لیے میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسہ قریشی۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ناظرین، خبرنامے کا آغاز کریں گے وزارت خزانہ کی ماہانہ رپورٹ سے۔ وزارت خزانہ نے اپنی ماہانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت نئے مالی سال کے ابتدائی ماہ میں بحالی کے سفر پر گامزن ہے اور اہم اعشاریے پیش رفت کا اشارہ دے رہے ہیں۔ وزارت خزانہ کی ماہانہ رپورٹ کے مطابق ملک میں مہنگائی میں کمی، ترسیلات زر اور مالیاتی استحکام کے باعث معیشت میں بہتری، جبکہ مینوفیکچرنگ اور آئی ٹی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فروری 2025 کے دوران بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ترسیلات زر 3.1 ارب ڈالر رہیں۔ ترسیلات زر میں سالانہ بنیاد پر 38.6% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ گزشتہ سال کے اسی ماہ میں 2.25 ارب ڈالر تھا۔ برآمدات میں بھی 2.4% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال ایف بی آر محصولات میں 24.2% کا اضافہ، جبکہ نان ٹیکس آمدنی میں 75.8% کا اضافہ ہوا ہے۔ مینوفیکچرنگ کے شعبے میں چیلنجز کے باوجود بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ گاڑیوں کی پیداوار میں 41.9% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مہنگائی میں کمی کے باعث معاشی سرگرمیاں مزید تیز ہونے کا امکان ہے۔ رپورٹ کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سرپلس ہے، جبکہ بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق پالیسی اصلاحات اور استحکام کی بدولت پاکستان کی معیشت مستقبل قریب میں مزید بہتر ہونے کی توقع ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں بین الوزارتی اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جس میں آذربائیجان کے ساتھ سرمایہ کاری منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ معاشی ترقی کے لیے کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد تیز کیا جائے تاکہ قابل عمل منصوبوں میں سرمایہ کاری یقینی بنائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ آذربائیجان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب گندم اگاؤ پروگرام کے تحت صوبے میں گندم کے کاشتکاروں کے لیے 1000 مفت ٹریکٹرز مہیا کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے بٹن دبا کر گندم اگاؤ انعامی اسکیم کے لیے ڈیجیٹل قرعہ اندازی کی۔ قرعہ اندازی میں پہلا ٹریکٹر بہاول نگر کی خاتون کاشتکار کوثر پروین کا نکلا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے خود فون کر کے کامیاب کاشتکاروں کو مفت ٹریکٹر ملنے کی مبارکباد دی۔ کاشتکاروں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میری دعائیں کاشتکار بھائیوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اس سال گندم کی فصل اچھی ہوگی۔ گندم اگاؤ مہم میں مفت ٹریکٹر کے لیے 12.5 ایکڑ سے 57,733 سے زائد اراضی مالکان کاشتکاروں نے اپلائی کیا۔ جانچ پڑتال کے بعد 21,496 کاشتکار قرعہ اندازی کے لیے اہل قرار پائے۔ قرعہ اندازی میں کامیاب 1000 کاشتکاروں کو 55 ہارس پاور کے ٹریکٹر مفت دیے جائیں گے۔ رانا ثناءاللہ سے آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں باہمی تعلقات اور تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ سیاسی استحکام اور ترقی لازم و ملزوم ہے۔ جمہوری روایات کے فروغ سے ہی ملک میں استحکام ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ مضبوط معیشت اور بہتر خارجہ تعلقات کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوسناک خبر، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ ماجدہ قضاء الہی سے وفات پا گئی ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم نے جنرل سید عاصم منیر کی والدہ کے انتقال پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ دکھ کی اس گھڑی میں ہماری ہمدردیاں لواحقین کے ساتھ ہیں، سوگوار خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مرحومہ کے لیے بلندی درجات کی دعا کی۔
चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर्स, वज़राए आला और वफाकी वज़रा का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा मोहतरमा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, सरदार एयाज सादिक, कामरान खान टसूरी, मरियम नवाज शरीफ, मोहसिन नकवी, सरदार मोहम्मद यूसुफ, इंजीनियर अमीर मकाम, अलीम खान और दीगर वज़रा की मरहुमा की मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की है। उन्होंने कहा कि माँ जैसी अजीम हस्ती का इस दुनिया में कोई नेमुल बदल नहीं है। उन्होंने अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से बात करेंगे। सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें समाअत के लिए आज मुकर्रर कर दी गई हैं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। एहतसाब अदालत ने जुर्म साबित होने पर बानी पीटीआई को 14 साल कैद जबकि बुशरा बीबी को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया था। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस की समाअत के दौरान अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए आइंदा समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में हुई। अली अमीन गंडापुर के वकील राजा ज़हूरुल हसन एडवोकेट अदालत में पेश हुए। शरीक मुलजिम असद फारूक अदालत में पेश हुए और हाजिरी लगाई। अली अमीन और असद फारूक के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की नाअहली से मुताल्लिक केस में 9 अप्रैल तक तमाम दरखास्तों पर जवाब जमा कराने की हिदायत की है। मेंबर सीन निसार दुरानी की सरबराही में बेंच ने इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत की। जमशेद दस्ती के खिलाफ असासाजात में गलत बयानी पर नाअहली की दरखास्तें दायर की गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने पैटिशनर्स को दरखास्तों की कॉपियां जमशेद दस्ती को फ्राहम करने की भी हिदायत की। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। SIFC के ताउन से पाकिस्तानी सनती बरामदात के आलमी सतह पर फरोग का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड ने बाज़ाब्ता तौर पर अमरीका को अपनी मसनूआत की बरामदात का आगाज कर दिया है। पल के ट्रांसफार्मर्स की पहली खेप रवा माह 13 मार्च को पाकिस्तान से अमरीका रवाना हुई थी। कंपनी ने अपनी आलमी मौजूदगी को मजीद मुस्तहकम करने और नए बैनुल-अक़वामी मौक़े तलाश करने के अज़्म का इयादा किया। कंपनी ने आलमी सतह पर तरक्की के लिए हिताची, फुजिस्तो और जनरल इलेक्ट्रिक समेत कई मारूफ बैनुल-अक़वामी कंपनियों के साथ शराकत दारी कायम की है। SIFC का मिशन जदीद टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और सनती खुशहाली के जरिए पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करना है। नाज़रीन, वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने यौम पाकिस्तान की तकरीब का इन्नेकाद किया। इस मौके पर अमन, तरक्की और आलमी ताउन के हवाले से मुल्क के अज़्म का इयादा किया गया। सफीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इलाकाई चैलेंजेस, इक्तसादी दबाव और सिक्योरिटी खतरात के बावजूद पाकिस्तान मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी मुस्बत बयानिए की तश्कील रवाबित को फ़रोग देने और दोनों मुल्कों की तरक्की में अहम किरदार अदा करते रहे। ब्यूरो ऑफ जनूबी और वस्त एशियाई उमूर के सीनियर ब्यूरो एहलकार एरिक मेयर ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ मजबूत और पायदार शराकतदारी के लिए अमरीकी अज़्म का इयादा किया। उन्होंने कहा कि हमारी शराकतदारी इक्तसादी, सिक्योरिटी, तालीमी और सकाफती ताल्लुकात पर मुहित है। बाहिमी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने के ख्वाह हैं। तकरीब में अमरीकी हुकाम समेत सफारती बरादरी, पाकिस्तानी नयाद, अमरीकी कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज, लंदन के तारीखी चर्च वेस्टमिनिस्टर एबे पर पाकिस्तान का कौमी परचम लहरा दिया गया। पाकिस्तान के लिए खुसूसी एजाज कॉमनवेल्थ का मेंबर मुल्क होने की वजह से कौमी दिन के मौके पर दिया गया है। यौम पाकिस्तान के मौके पर तारीखी चर्च में दुआया तकरीब का इन्नेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर हाई कमीशन के अफसरान और अहले खाना और दीगर अफराद भी मौजूद थे। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 7 दिन बाकी हैं। 23 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 8,76,194 तक पहुंच चुकी है और वापसी का यह सिलसिला जारी है। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया है और हुकूमत की जानिब से यह यकीन दहानी करवाई गई है कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी, जबकि वापस आने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजाम भी किए गए हैं। तालिबान के ज़ेरे असर अफगानिस्तान मुनशियात का गढ़ और दहशत गर्दी का मुआविन बन चुका है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में दहशत गर्दी के साथ साथ मुनशियात भी बड़ा मसला बनकर उभरा है।
اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات اور جرائم کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے زیر قبضہ افغانستان میت، ہیروئن اور افیون کی کاشت کا بڑا مرکز ہے، جس سے طالبان کو مالی فائدہ ہو رہا ہے۔ منشیات کی صنعت سے جڑے افراد ہتھیار، انسان اور منشیات اسمگل کرنے میں ملوث ہیں۔ افغانستان میں خشک افیون کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہیں، جبکہ اسمگلنگ زیادہ منافع بخش ہے۔ منشیات کی آمدنی سے طالبان اسلحے کی غیر قانونی تجارت کو فروغ دے رہے ہیں۔ طالبان کی نام نہاد پابندی کے باوجود منشیات کی اسمگلنگ دگنی ہو گئی، جبکہ دنیا کو دکھایا گیا جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ افیون، ہیروئن اور میت کی بڑھتی کاشت سے خطے کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ اقوام متحدہ نے بھی افغانستان میں بڑھتی منشیات کی کاشت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ قابضی ہونی فورسز کی غزہ پر جارحیت بدستور جاری ہے۔ شہید ہونے والے مظلوم فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ زخمیوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے۔ اسرائیلی فورسز کے غزہ پر تازہ حملوں میں 2 صحافیوں سمیت 60 سے زائد فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ شہداء میں خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد شامل ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے میں اسرائیلی فورسز کے حملوں میں 730 فلسطینی شہید جبکہ 1367 زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ میں انسانی بحران مزید شدت اختیار کر چکا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت ہے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں 2 صحافیوں کے قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ اور اب خبر آپ کو دیتے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر سے، جہاں بھارتی فورسز نے آزادی پسند کارکنوں کے خلاف چھاپہ مار کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض بھارتی فوج، پولیس اور پیراملٹری فورسز نے بانڈی پورہ، ہندواڑہ، بڈگام اور شپیاں میں جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی، تحریک حریت جموں کشمیر، مسلم لیگ اور پیپلز فریڈم لیگ کے رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے۔ فورسز اہلکاروں نے ان کارروائیوں کے دوران حریت رہنماؤں کے اہل خانہ کو ہراساں کیا اور بینک دستاویزات، موبائل فون اور جائیدادوں کے کاغذات قبضے میں لے لیے۔ بھارتی فورسز نے ضلع کٹھوعہ میں جاری محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران کمانڈوز، ڈرونز، سراغ رسا کتوں اور فوجیوں کی بھاری نفری تعینات کر دی ہے۔ ضلع میں بڑے پیمانے پر جاری محاصرے اور تلاشی کی کارروائی دوسرے روز بھی جاری رہی۔ آپریشن میں بھارتی فوج، پیراملٹری، سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور دیگر فورسز حصہ لے رہی ہیں۔ ناظرین، بلوچستان کے ضلع اوران میں یوم پاکستان بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ سیکیورٹی فورسز اور سول انتظامیہ کے اشتراک سے مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریبات میں بلوچی ثقافت کو اجاگر کیا گیا۔ 23 مارچ کی مناسبت سے بلوچی موسیقی اور روایتی رقص بھی پیش کیے گئے۔ سکولز میں فٹ بال اور کرکٹ کے مقابلے منعقد کیے گئے، جس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے بھرپور حصہ لیا۔ قومی یکجہتی اور بھائی چارے کے پیغامات کے ساتھ سیمینارز اور تقریری مقابلے منعقد ہوئے۔ طلباء نے اپنی تقاریر میں پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے جانوں کی قربانیاں دیں، ہمیں ان قربانیوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ہم سب کو پاکستان کی محبت میں متحد ہو کر اسے دنیا کا ایک طاقتور اور کامیاب ملک بنانا ہے۔ پاکستان کی فوج ہمارے دفاع کا مضبوط حصار ہے، ان کی قربانیاں ہمارے لیے ناقابل فراموش ہیں۔ وزیر مملکت برائے صحت ڈاکٹر مختار بھرت کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس، سی ڈی اے اور راولپنڈی کے حکام کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں حفاظتی ٹیکہ جات مہم کی پیش رفت سمیت مختلف اہم اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر مملکت نے کہا کہ بنیادی اور طبی سہولیات تک عوام کی رسائی کو یقینی بنانا ہوگا۔ بنیادی اور دیہی مراکز صحت اور تمام کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز کے لیے ایک درجہ بندی کا نظام متعارف کروائیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر مسلسل رپورٹنگ کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے دیہی علاقوں میں حفاظتی ٹیکہ جات کے لیے عملے کی کمی پوری کرنے کے لیے ویکسینیٹرز کی بھرتی کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ بلوچستان بھر میں یوم پاکستان کے موقع پر 626 تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جن میں 1.5 لاکھ سے زائد افراد براہ راست اور 10 لاکھ افراد سوشل اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے شریک ہوئے۔ یوم پاکستان کے موقع پر بلوچستان کے عوام نے بھرپور جوش و جذبے سے تقریبات میں شرکت کی۔ تقریبات کے دوران نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ سول سوسائٹی، سیاسی اور سماجی شخصیات، سول انتظامیہ، سیکیورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور شہداء کے خاندانوں نے تقریبات میں خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس کے علاوہ بلوچستان بھر میں ہونے والی تقریبات میں 126 کھیلوں کے مقابلے، 27 پرچم کشائی کی تقریبات اور 30 ریلیاں نکالی گئیں۔
اور گوادر میں بھی یوم پاکستان کی پرجوش تقریبات کا انعقاد کیا گیا اور ماڑا، پسنی اور جیونی میں یوم پاکستان کے حوالے سے مختلف تقریبات منعقد کی گئیں۔ تقاریب میں تقریری مقابلے، کار ریلی اور پیدل مارچ جیسی منفرد سرگرمیاں شامل تھیں۔ گوادر میں بڑی تعداد میں عوام نے مارچ کیا۔ گوادر میں جوش و خروش کے ساتھ عوام اور سول انتظامیہ نے پیدل مارچ کے دوران پاکستان کا طویل عرض جھنڈا لہرایا۔ مارچ کے دوران عوام نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے اور وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ ناظرین، پنجاب کی اقلیتوں میں مائنارٹی کارڈ کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ایسٹر پر 15,000 پیکج کی منظوری دی ہے۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں خانیوال سے ہمارے نمائندے کلثم بشیر احمد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق اقلیتوں کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے صوبائی وزیر اقلیتی امور و انسانی حقوق سردار رمیش سنگھ اروڑا نے خانیوال میں ایک تقریب کے دوران 2200 مستحقین میں اقلیتی کارڈ تقسیم کیے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو سوچ ہے کہ میرے نزدیک اقلیت اور اکثریت کی تقسیم نہیں ہے، چیف منسٹر پنجاب اسی ویژن کو لے کے آگے چل رہی ہیں اور میرا ڈپارٹمنٹ اس ویژن کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہے انٹو ایکشن۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ 2.5 ارب روپے سے اقلیتوں کی عبادت گاہوں میں تعمیراتی کام کروائے جائیں گے، جبکہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں سکھ و ہندو میرج ایکٹ منظور کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے مسیح برادری کے لیے ایسٹر پر 15,000 فی کس کے پیکیج کی منظوری دی ہے۔ شکر گزار ہوں کہ ہمارے جو مائنورٹی منسٹر ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں اور انہوں نے جو سی ایم صاحبہ کا جو ایک ویژن تھا ان کے اوپر انہوں نے بات کیا ہے کہ مائنورٹیز کے لیے ان کی جتنی بھی ایفرٹس ہیں وہ ہمارے لیے جو ہیں وہ بہت خوشی کی بات ہے۔ مریم نواز کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ مہنگائی کے طور پہ یہ میورٹی کارڈ دیا ہے۔ محترمہ مریم نواز کا تہہ دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اس بات کے لیے کہ یہ جو اقلیتی کارڈ مائنورٹی کارڈ کا آغاز کیا ہے، اس سے یقیناً یہ تاثر ہمیں ملا ہے کہ ہم اس پرچم کے سائے تلے سب ایک ہیں۔ تقریب سے سابق صوبائی وزیر حاجی عرفان احمد خان ڈاہا، صوبائی پارلیمانی سیکرٹری رانا سلیم حنیف، ڈپٹی سیکرٹری مذہبی امور میاں عمر حیات اور ڈپٹی کمشنر سلمہ سلمان نے بھی خطاب کیا۔ کلثم بشیر احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، خانیوال۔ رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے پاک پتن میں بھی سستا رمضان بازار لگایا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عباس علی عارفی۔ حکومت پنجاب کی جانب سے لگائے گئے سہولت بازاروں میں 16 بنیادی ضروری اشیاء پر 25% تک سبسڈی دی گئی ہے۔ سہولت بازاروں میں 10 کلو آٹے کا تھیلا عام مارکیٹ کی نسبت 50 روپے کمی کے بعد 770 روپے، چینی عام مارکیٹ کی نسبت 34 روپے کمی کے ساتھ 130 روپے اور کھجور 20 روپے کمی کے ساتھ 450 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ ہماری اولین ترجیحات میں سے جو وزیر اعلیٰ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر کم آمدن والے گھر میں بنیادی ضروریات لازمی پہنچیں۔ ہماری پرائورٹی میں آلو، پیاز، ٹماٹر، لیموں، کدو، بھنڈی، شملہ مرچ، دال، چاول، چینی، آٹا، گھی، یہ چیزیں پہلے ہیں۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ماہ سیام کی برکتیں جو ہیں، حکومت کی جو پالیسی ہے کہ جس میں مہنگائی کو کم کیا گیا ہے، اس کے اثرات جو ہیں عام عوام تک منتقل کیے جائیں۔ تو اگر غریب بندہ یہاں پہ آتا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے وہ کہ اچھے بجٹ میں اپنا جو ہے وہ گزارا کر سکتا ہے، ہانڈی روٹی کر سکتا ہے۔ یہاں سے چیزیں بہت سستی مل رہی ہیں۔ چینی ہمیں 130 روپے کلو ملی ہیں۔ حکومت کا یہ بہت اچھا نظام ہے۔ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਕ ਖਰੀਦਿਆ ਵਾ, ਚੀਨੀ, ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਰੇਟ ਸਸਤਾ ਲੱਭਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਰਹਿਤ ਆ। حکومت کی جانب سے لگائے گئے سہولت بازاروں کی مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے لگائے جانے والے رمضان بازاروں میں جہاں عوام الناس کو ریلیف مل رہا ہے، وہیں ناجائز منافع خوروں کی بھی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے۔ عباس علی عارفی، پی ٹی وی نیوز، ڈسٹرکٹ پاک پتن۔ عوام کو سستے داموں چینی کی فراہمی کے لیے پنجاب حکومت نے بہاول نگر میں 5 شوگر سیل پوائنٹ بنائے ہیں، جہاں مرد و خواتین کی بڑی تعداد کم قیمت پر چینی خرید رہی ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے فیصل رحمان کی اس رپورٹ میں۔ حکومت نے عوام کو رمضان المبارک میں ریلیف دینے کے لیے سستے داموں چینی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بہاول نگر میں 5 سیل پوائنٹس بنائے ہیں، جہاں چینی بازار کی نسبت 40 روپے فی کلو گرام کم قیمت پر فروخت کی جا رہی ہے۔ گورنمنٹ نے یہ سہولت دی ہے کہ چینی جو ہے وہ 130 روپے ہے اور بازار میں جو ہے 170-80 روپے دے رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے بہت اچھا انتظام کیا ہے، تو 40 روپے کم دام میں دے رہی ہے چینی، 130 روپے دے رہی ہے۔ بیٹھنے کے لیے بہترین انتظام کیا گیا ہے،
छाँव का इंतज़ाम है हर रोज़ की बुनियाद पर, और यहाँ पर बहुत अच्छा इंतज़ाम भी किया हुआ है। लोग आते हैं और बाखुशी चीनी ले जा रहे हैं, और बैठने का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा किया हुआ है हमने यहाँ पे। बहावल नगर के मुख्तलिफ इलाकों और मॉडल बाजारों में लगाए जाने वाले सेल पॉइंट से शहरी शनाख्ती कार्ड दिखाकर एक वक्त में 1 से 2 किलो चीनी जो है खरीद रहे हैं। राना फैसल रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावल नगर। इस्लामाबाद में रमजान बाजारों में अवाम के लिए रिलीफ का सिलसिला जारी है। तफसील बता रही हैं अनीता अजीज। रमज़ान उल मुबारक के बाबरकत महीने में अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए रमज़ान बाजारों में सब्जियों और फलों समेत चावल, चीनी, घी, आटा, दालें और गोश्त आम बाजार से कम कीमत पर दस्तयाब हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कोई स्कीम का ऐलान किया हुआ, रोज आते माशाल्लाह 2-3 पूनी ले गया, और बहुत अच्छी बात है। हम जिंदाबाद, वज़ीर-ए-आज़म बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन बाजारों का मकसद अवाम को मयारी और सस्ती अशिया खुरोनोश फराहम करना है ताकि महंगाई और मुनाफा खोरी की रोकथाम की जा सके। रमजान शरीफ में हर चीज में रिलीफ मिली है, बहुत अच्छा बाजार है, इसमें चीजें अच्छी मिल रही हैं, सस्ती मिल रही हैं, और हमें बहुत इसका फायदा मिला है। सस्ते रमजान बाजार हुकूमत पाकिस्तान की तरजीहात का हिस्सा है, जिनके जरिए अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करना यकीनी बनाया जा रहा है। अनीता अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, शहर कायद में फलाही तंजीमों की जानिब से कम आमदनी वाले नादार अफराद को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर ईद शॉपिंग बाजार लगाने का एहतमाम किया गया है। इसी हवाले से कराची से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हसन नासिर सिद्दीकी की। ईद की खुशियों पर तो सबका हक होता है, खुसूसन उनका जो माली इस्तिताअत नहीं रखते। इस सफ़ेद पोश तबके के लिए कराची में मुफ्त बाजार लगाए गए, जहां मलबूसात, जूते, चप्पलें, चूड़ियां, बच्चों के खिलौने और दूसरा सामान मौजूद था। ज़रूरतमंद अफराद ने जी भर के अपनी मनपसंद अशिया की खरीदारी की। मुंतज़मीन का कहना था कि इस बाजार का मकसद सफ़ेद पोश तबके की इज्जत नफ्स को मजरूह किए बगैर उन्हें ईद की खुशियों में शामिल करना है। ये बेसिकली ईद बाज़ार है जो कि पिछले 6 साल से हम रमज़ान के अंदर, रमज़ान के आखिरी अशरे में लगाते हैं, और इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो बच्चे एहसास कमतरी का शिकार होते हैं वो उनको जो है हम फैसिलिटेट करें, उनको खुशियाँ फराहम कर सकें। तो हम उनकी एक खूबसूरत यादें यहाँ पर बनाना चाहते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें नई हैं, कोई भी यूज़ चीज़ें हम नहीं देते, और ये कम्प्लीटली मुफ्त है। ये हमारा ईद बाज़ार जो है ये बचत बाज़ार नहीं है, बल्कि ये फ्री बाज़ार है। ये उन लोगों के लिए है जो ईद ही अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत गरीब हैं, ज़ाहिर सी बात है वो ईद मनाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनका भी ईद ऐसी ही मनाएं जैसे आम लोग ईद ही मना रहे होते हैं। इस मौके पर बच्चों के दरमियान मालूमात आम्मा का मुकाबला भी करवाया गया, जबकि वहाँ आने वाले तमाम बच्चों को ईदी भी दी गई। कम आमदनी वाले अफराद को ईद की खुशियों में शामिल करने का ये अंदाज निहायत दिलकश और काबिल तकलीद है। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, खित्ता पठवार और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में दिन के औकात में गर्म रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में गर्म रहा। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत की तफसील मिठी 42, शहीद बेनज़ीराबाद 41, छोर और दादू में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेल की खबरों में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच कल वेलिंगटन में खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज में मेजबान न्यूजीलैंड को 3-1 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। कौमी टीम ने बेसन रिजर्व ग्राउंड में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। कोचेस की ज़ेरे निगरानी खिलाड़ियों ने फील्डिंग प्रैक्टिस भी की। प्रैक्टिस से पहले खिलाड़ियों ने वार्म अप ड्रिल्स में शिरकत की।
पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक टॉम लैथम टीम की क़यादत करेंगे, जबकि पाकिस्तानी नैयाद मोहम्मद अब्बास भी पाकिस्तान के खिलाफ वनडे स्क्वाड का हिस्सा होंगे। मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान में पैदा हुए और फिर फैमिली के हमरा न्यूजीलैंड मुंतकिल हो गए। मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले अजहर अब्बास के बेटे हैं। कीवी स्क्वाड में आदि अशोक, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, जैकब डफी और मिचेल हे शामिल हैं। निक कैली, विल ओरॉर्के, बेन सीयर्स, नेथन स्मिथ और विल यंग भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज का आगाज 29 मार्च को नेपियर में पहले मैच से होगा। सीरीज के दीगर मैचेस 2 और 5 अप्रैल को खेले जाएंगे। AFC एशियन कप 2027 क्वालिफायर्स में पाकिस्तान और शाम के दरमियान मैच आज अल अहसा में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। कौमी फुटबॉल टीम ने अल अहसा में हेड कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन की ज़ेरे निगरानी तरबियती सेशन किया। खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतें निखारने पर भरपूर तवज्जो दी। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में मियामी ओपन अमरीका के फ्रांसिस तियाफो और रायली ओप्लका यूनिट से बाहर, फ्रांस के आर्थर फिल्स जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। टेलर फ्रिट्ज, टॉमस महाट, जैकब मैंसिक और एडम वॉल्टन भी अपने मैचेस में कामयाब रहे। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में जारी इवेंट का दिन अमरीकी खिलाड़ियों के लिए बुरा साबित हुआ। अमरीका के रॉयली ओप्लका और कोको गाफ के बाद फ्रांसिस तियाफो भी इवेंट से चलते बने। तीसरे राउंड में फ्रांस के आर्थर फिल्स ने फ्रांसिस तियाफो को 3 सेट्स में शिकस्त दी। फिल्स ने तियाफो को 7-6, 5-7 और 6-2 से हराया। मैच के दौरान दोनों खिलाड़ियों की कई बार आपस से बाहर हुए और अपने रैकेट्स जमीन पर मारे। प्री क्वार्टर फाइनल में आर्थर फिल्स का सामना टॉप सीड जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा। अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने ऑस्ट्रेलिया के जॉर्डन थॉम्सन को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त देकर राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया। अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने कनाडा के डेनिस शिपोवलोव को हराकर वाहिद मुकामी उम्मीद बरकरार रखी। फ्रिट्ज ने शिपोवलोव के खिलाफ 7-5 और 6-3 से कामयाबी समेटी। इससे पहले खेले गए मैच में जमहूरिया चेक के टॉमस महाच ने अमेरिका के रॉयली ओप्लका को स्ट्रेट सेट्स में 7-6 और 6-3 से हराकर चलता किया। जमहूरिया चेक के जैकब मैंसिक ने रूस के रोमन सेफिलियन और ऑस्ट्रेलिया के एडम वॉल्टन ने ताइवान के कोलमैन वांगचक लॉन्ग को शिकस्त दी। मियामी ओपन टेनिस खवातीन सिंगल्स में अमेरिका की कोको गाफ का सफर तमाम हो गया। पोलैंड की मैग्दा लेनित और बेलारूस की अरीना साबालेंका क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। फ्लोरिडा में जारी इवेंट के अनसीड मैग्दा लेनित ने 3rd सीड मेजबान खिलाड़ी को कोको गाफ को 6-4 और 6-4 से मात देकर लास्ट 8 का टिकट हासिल किया। अगले मरहले में लेनित का मुकाबला 6th सीड इटली के जैस्मिन पाउलिनी से होगा। पाउलिनी ने जापान की नाओमी ओसाका को 3-6, 6-4 और 6-4 से जेद किया। एक और अमरीकी खिलाड़ी लेनली कोलिंस को आलमी नंबर 1 टॉप सीड बेलारूस की अरीना साबालेंका ने स्ट्रेट सेट्स में 6-4 और 6-4 से मात दी। क्वार्टर फाइनल में साबालेंका और चीन की किन वेंग जेंग से होगा। किन वेंग जेंग ने प्री क्वार्टर फाइनल में क्रोगर को स्ट्रेट सेट्स में 6-2 और 7-6 से शिकस्त दी। विंग फॉयल वर्ल्ड टूर मराकेश सीजन का इफ्तिताही मुकाबला फ्रांस के मेथस घियो और इटली की मेदालिना स्पानो ने जीत लिया। दाखिला मराकेश में होने वाले इवेंट के मर्दों के डिवीजन में 3 मरतबा के विंग फॉयल रेसिंग वर्ल्ड चैंपियन मेथस घियो ने कामयाबी समेटी। क्वालिफाइंग में टॉप पर रहने वाले घियो को पोलैंड के कामिल मेनिवेकी और इटली के फ्रांसिस्को पोजो ने सख्त मुकाबला दिया। घियो को फाइनल जीतने के लिए एक रेस की ज़रूरत थी, ताहम पहली रेस में गिरने की वजह से उनकी दूसरी रेस असाब शिकन रही। खवातीन मुकाबलों में इटली के मेदालिना मारिया स्पानो ने अपनी हर रेस जीती। विमेंस फाइनल में कई उभरते टैलेंट नजर आए। यूनान की एमिलिया कॉस्ती ने बेहतरीन कारकर्दगी के साथ दूसरी और फ्रांस की एनाइस माई डिस्जार्डन्स ने तीसरी पोजीशन हासिल की।
पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की ट्रॉफी लोमीनारा का सफर जारी है। ट्रॉफी मुख्तलिफ शहरों के सफर के साथ मुल्क के तारीखी मुकामात की तशहीर का जरिया भी बन रही है। एशिया की सबसे बड़ी नमक की कान, खेवड़ा और कदीम सयाहती मुकाम कटास राज में ट्रॉफी की रोनुमाई की गई। विफाकी दारुल हुकूमत में 360 फुट से बुलंद हेलीपैड पर ट्रॉफी रखकर शायकीन को दुनिया के सरसब्जो शादाब और खूबसूरत तरीन शहर इस्लामाबाद का नज़ारा भी कराया गया। ट्रॉफी रोनुमाई के हर मुकाम पर शायकीन ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनाई और अपनी खुशी का इजहार किया। PSL का 10वां एडिशन 11 अप्रैल से 18 मई तक कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के मुतबादल ड्राफ्ट का ऐलान हो गया है। रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में पेशावर ज़ल्मी ने कार्बन बोश की जगह जनूबी अफ्रीका ही के जॉर्ज लैंडे को डायमंड कैटेगरी में टीम का हिस्सा बनाया है। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी को रॉसी वेंडर डॉसन के मुतबादल के तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड में शामिल किया गया है। कराची किंग्स ने बांग्लादेश के लटन दास को रिजर्व रखा है, जिसे सिल्वर कैटेगरी में मुंतखब किया गया था। न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन को कोयटा ग्लैडिएटर्स और केन विलियमसन को कराची किंग्स ने सप्लीमेंट्री प्लेयर के तौर पर रिजर्व रखा है। PSL का 10वां एडिशन 11 अप्रैल से शुरू होगा। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए लाहौर में खिलाड़ियों का तरबियती कैंप जारी है। खवातीन क्रिकेटर्स हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में प्रैक्टिस कर रही हैं। चौथे रोज खिलाड़ियों को बॉलिंग और बैटिंग स्किल्स बढ़ाने के बारे में तरबियत दी गई। खवातीन खिलाड़ियों के दरमियान आज प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा। तरबियती कैंप 30 मार्च तक जारी रहेगा। तेईस मार्च की मुनासबत से टांग में भी यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से एक रोज़ा क्रिकेट मेले का इनेकाद किया गया। तफसील ज़ाफ़रान मयानी की इस रिपोर्ट में। महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से यौम पाकिस्तान की मुनासबत से एक रोज़ा क्रिकेट मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें 4 टीमों ने हिस्सा लिया। जो 23 मार्च है उसकी खुशियों के इनेकाद के सिलसिले में हमने किया है। रमज़ान है, इस वजह से हमने यहाँ पे रात को मैच का इनेकाद किया। टांग के अवाम ने बहुत पुरजोश तरीके से अपना हिस्सा ले लिया। ये लोगों को बावर कराया कि टांग को अभी भी अमन का गहवारा है। एक रोज़ा क्रिकेट मेले में सनसनीखेज मुकाबलों के साथ साथ शानदार आतिशबाजी की गई, जिससे शायकीन क्रिकेट समेत हाज़रीन लुत्फ़ अंदोज़ हुए। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर इरफान भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने जो है टांग के लिए इतना अच्छा इवेंट करवाया। टांग में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है और मैं उम्मीद रखता हूं कि आगे भी इस तरह के ये टूर्नामेंट कराते रहेंगे। टांग में टैलेंट की कोई कमी नहीं, मगर क्रिकेट स्टेडियम समेत दीगर सहूलियात का फुकदान है। खिलाड़ियों ने हुकूमत से मंजूर शुदा क्रिकेट स्टेडियम की जल्द तकमील का मुतालबा किया। ज़ाफ़रान मयानी, PTV न्यूज़, टांग। मुजफ्फराबाद में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से पाक कश्मीर फ्लड लाइट शूट बॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद नौजवानों को सेहतमंद मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना है। रिपोर्ट कर रहे हैं अदील अहमद खान। पाक कश्मीर फ्लड लाइट शूट बॉल टूर्नामेंट में जिले भर की 8 टीमों ने हिस्सा लिया। 17 मार्च से जारी टूर्नामेंट का फाइनल बलोच क्लब मुजफ्फराबाद और टाइगर क्लब टंडाली के माबैन खेला गया, जिसमें बलोच क्लब मुजफ्फराबाद ने कामयाबी हासिल की। इख्तितामी तकरीब में फातेह और रनर अप टीमों को ट्रॉफियां दी गईं, जबकि टूर्नामेंट के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वालों में इनामात, मेडल्स और ट्रॉफियां तकसीम की गईं। इतना अच्छा हमें इवेंट ऑर्गेनाइज किया और हमें खेल का मौका दिया। इसमें हमने बहुत एंजॉय किया है और माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट कराया यार। और माशाल्लाह बहुत अच्छा है यहाँ पे एक मैनेजमेंट कमेटी जो ऑर्गेनाइज किया टूर्नामेंट, हम इसको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि हमें ये मौका फराहम किया नौजवानों को। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये आगे भी इस तरह हमें मौके फराहम करते रहेंगे। शहरियों की बड़ी तादाद ने शूट बॉल के मुकाबले देखे और नौजवानों में मस्बत सरगर्मियों और मकामी खेलों के फरोग के लिए टूर्नामेंट के इनेकाद को सराहा। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। नाज़रीन, खेल की खबरों का अहवाल आप जान चुके हैं। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। दुरुस्त हर वक्त
बारवाग। रमजान का तीसरा अशरा दोज़ख से नजात का बाइस है। ऐ अल्लाह मुझे आग से पनाह में रखना। इरशादे बारी ताला, अल्लाह ने जो तुम्हें दे रखा है इसके जरिए आखिरत का घर बनाओ और दुनिया में भी अपना नसीब फरामोश न करो। तुम भी इसी तरह अच्छा करो जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ अच्छा किया है और जमीन में फसाद न मचाओ। बेशक अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान का मुबारक महीना आया तो अल्लाह ने इसके रोजे तुम पर फर्ज कर दिए। इस माह में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से बेहतर है। वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत की जानिब से कायम किए गए सस्ते रमज़ान सहूलत बाजारों से शहरियों की बड़ी तादाद मुस्तफीद हो रही है। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद अपनी रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत ने जहां सूबे भर में 32 लाख मुस्तहिक खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज के तहत फी खानदान 10,000 रुपए उनकी दहलीज पर पहुंचाने के लिए इकदाम किए, वहीं अवाम को माह मुकद्दस में सस्ते दामों अशिया जरूरिया की फराहमी के लिए सूबे भर में रमजान सहूलत बाजार भी कायम किए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 10 जबकि सूबे भर में मजमूई तौर पर 80 सस्ते रमजान सहूलत बाजार कायम किए हैं। रमजान सहूलत बाजारों में आटा, चीनी, घी, दालें, फल और सब्जियां मार्केट की निस्बत सस्ते दामों फ्राहम की जा रही हैं। यहाँ की क्वालिटी जो है सबसे बेस्ट है, हर एक चीज़ साफ़ सुथरी वगैरह हमें मिल जाती है बाहर से। अच्छी चीज़ें मेयारी हैं और कीमत भी बाजार से बहुत कम है। कि एक पॉइंट से आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, सबसे बेस्ट ये चीज़ आ जाती है। मैंने तो आज टमाटर, आलू और एक दो और चीज़ें ली हैं। मैं साथ वाले कॉलेज से आती हूँ तो मेरे लिए कन्वीनियंट है, नियर टू है, इसलिए मेरे लिए आसान होता है आना। बाहर से काफ़ी सस्ता है इंशाल्लाह। यहाँ पे वो चिकन ख़रीदा मैंने 588 पे, बाहर तकरीबन कोई 730-700 के करीब बिकते हैं। बड़ी अच्छी फ़र्क है, बहुत अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं है, बड़ा अच्छा मेयार भी है, अच्छा भी है। इंतजामिया की जानिब से कीमतों पर कंट्रोल और मुसलसल निगरानी की वजह से सूबे भर में अवाम को अशिया खुरोनोश के निर्खों में रिलीफ और म्यार में भी बेहतरी आई है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। लाहौर में हर साल की तरह इस बार भी रमज़ान दस्तरखान सजाए गए हैं, जहां सैकड़ों रोज़ेदार इफ्तार करते हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं सरमद ख्वाजा से। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर मुखय्यर हजरात की जानिब से लगाए जाने वाले रमज़ान दस्तरखान पर मुसाफिरों, मजदूरों और मुस्तहिक अफराद को इफ्तारी फराहम की जाती है। दस्तरखान से इस्तेफादा करने वाले अफराद का कहना है कि मुखय्यर हजरात की जानिब से किया जाने वाला ये इकदाम न सिर्फ उनके लिए सहूलत का बाइस है बल्कि रमज़ान की असल रूह को भी उजागर करता है। अल्हम्दुलिल्लाह 250-300 बंदा हम पूरा इसको मुकम्मल अफ्तारी मिल जाती है खैरोफियत से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह पूरे पाकिस्तान को सलामत रखे। हमारे लिए ये बहुत आसानी है क्योंकि मार्केट में इधर हमारी काम करते हैं
तो इधर ही जो है ना हमें आसानी के लिए 4-5 साल से हमें ये बहुत अच्छा इंतज़ाम इनका खाने का, डेली इनकी जो है ना डिशें चेंज होती हैं और डेली हम इधर बैठ के जो है ना वो खाना अपना अफ्तार करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ, जॉब करता हूँ, यहाँ पे 5 साल से मैं आ रहा हूँ, बेहतरीन इंतजाम होता है। रमज़ान दस्तरखान मुंतज़मीन का कहना है कि वो कई साल से माह सयाम में दस्तरखान सजाते हैं और रोज़ाना सैकड़ों अफराद को अफ्तार कराते हैं। रमज़ान दस्तरखान को हमारा इस साल ये मेरा ख्याल चौथा साल है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा हम एक दस्तरखान लगाते हैं जो हर फ्राइडे लगता है, उसको 5-6 साल हो गए हैं उसको चलते आ रहे हैं। ये बनाने का मकसद है गरीब जो प्रॉपर मिडिल क्लास आदमी है जिनको मुश्किलात हुई हैं आजकल के दौर में खाना भी, ये उनके लिए हमने बनाया। लाहौर का ये रमज़ान दस्तरखान न सिर्फ रोज़ादारों के लिए सहूलत है बल्कि समाजी हमआहंगी और बाहमी मोहब्बत का एक खूबसूरत मज़हर भी है। माह सयाम रहमतें और बरकतें समेटने का मुबारक महीना है जिसके पेश नज़र मुखय्यर हज़रात रोज़ादारों के लिए अफ्तारी का एहतमाम करके बहुत सी बरकत समेटते हैं। सरमद ख्वाजा, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। इसके साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। PTV न्यूज़ पर यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमारे साथ रहेगा। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। रमज़ान पाकिस्तान